Welcome students to today's class. Today I am going to teach you the second chapter of class 8 and the chapter name is Colonial Rule in India. And in NCERT book the chapter name is From Trade to Territory. Okay, in private book Colonial Rule in India and in the NCERT book From Trade to Territory. Okay, different names are given but the matter is same. So let's start the chapter today. Okay. So, students, let's take the first heading of the chapter, and that is mercantilism and coming of the Europeans. Okay, students? Students, before starting the first heading, mercantilism and coming of the Europeans, I would like to tell you some important factor and some important points. Okay? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 14th सेंचुरी के पहले इंडिया में एंटर होने के केवल एक ही रास्ता था. Okay, before 14th century to enter in India there is only one way, and that belongs to land, and that is called Sindh province. Okay, today is Pakistan, na? So before that it is called Sindh province. So the area belongs to Sindhu river, so that is called Sindh. So from Sindh province there is only way to enter in India. Okay, and in 1498 वास्को डिगामा हैज़ सर्च द सी रूट टू इंडिया. उसके बाद पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते भी इंडिया में आने का रास्ता क्लियर हो गया. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट by Vasco da Gama, Europeans have saw a way to enter in India. And what is the way? I would like to show you through the line, through the picture. As you can see, that India is surrounded by water from three sides. Okay, from the side of north it belongs to Himalaya, it belongs to land, but from the east and from the south and from the west, three side India belongs to and surrounded from water. In the east side Bay of Bengal is there, and in the west side Arabian Sea is there, and in the southern side Indian Ocean is there. So India is completely surrounded by water from three sides, and from only one side it's surrounded by land, and that belongs to the Himalaya region and Pakistan and Afghanistan region. So at that time it is also included in India, and Afghanistan and Pakistan region and Sindh province, it total belongs to Indian soil. So this is the only way by land they can enter it from Sindh. And when Vasco da Gama had discovered the sea route to India in 1498, so after that Europeans has planned to enter in India by sea route. Okay, now let's proceed with the first heading. And what was the first heading? Mercantilism as an and coming of the Europeans. Okay, what do you mean by mercantilism? Mercantilism is an economic policy became popular in Europe in the 16th century, and it became dominant economic thought which advocated that prosperity of a country depends on the profitable trade. ये मैकेंटलिज्म उस टाइम का एक इकोनॉमिक पॉलिसी था, और उस पॉलिसी के हिसाब से किसी भी देश की प्रतिष्ठा या समृद्धि या संपन्नता उस बात पर डिपेंड करती थी कि उसका व्यापार यानी बिजनेस का प्रॉफिट कितना था. और इसी बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया और पूरे एशिया में बढ़ने लगे. एंड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, यूरोपियन कंट्रीज हैज़ डिसाइडेड टू क्रॉस देयर बाउंड्रीज एंड कम टू एशिया. दे हैव केम टू चाइना and many other things country. In India they have also came. India में भी वे आए just for the trade and just for the profit of their company. To trade in India, many European countries traders have came to India, like British, French, Dutch, and Portuguese. Portuguese was first European countries tradesman which came to India. सबसे पहले पोर्टुगीज यानी पोर्टुगाल यानी पुर्तगाली लोग आए. It soon led the rivalries with the trade constantly fighting against each other for supremacy. और बहुत जल्द उन सभी फ्रेंच, ब्रिटिश, डच और पोर्टुगीज़ में युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी कि कौन इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड करेगा और कौन एक छत्र राज्य यहाँ पे करेगा. Who will trade with India with the full fledged and with the soul only power. सुप्रीमेसी के चक्कर में दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी. The first European trades to discover a sea route in India were the Portuguese. पोर्तुगीज ऐसे पहले थे जिन्होंने इंडिया को आने के लिए
रूट सी रूट खोजा था, यानी समुद्र के रास्ते आने का रास्ता उन्होंने खोज लिया था। एंड द एक्सप्लोरर वाज वास्को डिगामा, और वो खोजकर्ता कौन था? वास्को डिगामा था। द पोर्टुगीज मर्चेंट वर एबल टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर along west coast of India with trading settlement at गोवा। पोर्टुगीज़ के जो मर्चेंट्स थे वो इंडिया में आए और आ करके गोवा, दमन दीव, सेटल, बेसिन आदि इंडियन क्षेत्रों में आकर के वहाँ पे उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। द डच अराइव्ड इन इंडिया in 1595 and established trading factories in मुसलीपत्तनम, पुलिकट एंड सूरत। ये 1595 में इंडिया है और मुसलीपत्तनम में, पुलिकट में और सूरत में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड in 1600 and established its trading centers at बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। और इंग्लिश और ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में और उसने बॉम्बे यानी कि मुंबई, कलकत्ता यानी कि कोलकाता और मद्रास यानी कि चेन्नई में अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाईं। द फ्रेंच फॉर्म फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टू कम्पीट विद द ब्रिटिश एंड डच। और फ्रांस देश में भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वे भी यहाँ पे आए ब्रिटेन और डच लोगों से मुकाबला करने के लिए और अकेले बिजनेस करने के लिए। दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एट पौंडीचेरी एंड मद्रास एंड चेंद्रगोंग। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ पौंडीचेरी में लगाई, मद्रास में लगाई और चेंद्रगोंग में लगाई। In the starting of 18th century, the Dutch and the Portuguese tradesmen have started to lose their control in the Indian territories, and also they have started to lose their control in the trade with India. And only two supreme powers resting in India: Britain and France. British traders and French traders were two important and two powerful traders there. So their companies are surviving here, and the Dutch and Portuguese have lost their total control in the trade in India. तो डच और पुर्तगाली बिजनेसमैन ने अपने कंट्रोल खो दिए, वे हारने लगे और उसके बाद से फ्रांस और ब्रिटेन ही दो ऐसे पावरफुल कंट्रीज बच गए जो यहाँ इंडिया में ट्रेड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। नाउ ब्रिटेन एंड फ्रांस have started war of business to control over India. Okay, both wants to control Indian territory for the business. Britain also wants to control and France also wants to control, and both countries are the superpower at the time. Both countries have good economy, and they are also having the great amount of army and ultra modern weapons of at the time. So both wants to control in India, and finally in 1763 Britain defeated France and became the only superpower in the terms of business in India. Okay, students, let's take another heading, and that is English East India Company. Okay students, जब ब्रिटेन ने फ्रांस को कर्नाटिक वार में हरा दिया, ओके, उसके पहले ही सर थॉमस रो ने 1608 में जहांगीर के कोर्ट में वो आया था और आकर के उसने एक लाइसेंस पा लिया था, उसने अधिकार प्राप्त कर लिया था सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने का। उससे पहले कैप्टन हॉकिंस भी आए थे अधिकार प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें वो अधिकार मिल नहीं पाया था। लेकिन 1608 तक सर थॉमस रो ने सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार और लाइसेंस ले लिया था। इसके साथ ही इंडिया में ब्रिटेन लोगों का व्यापार शुरू हो गया। सबसे पहले बॉम्बे में, कोलकाता में और मद्रास ने उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। उसके साथ साथ मुसलीपत्तनम, पटना, ढाका, कश्मीर बाज़ार, सेंट जॉर्ज फोर्ट इन मद्रास, बॉम्बे, स्तुतनी, कोलकाता और गोविंदपुर, इन सब जगहों पे भी अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक फैक्ट्रियां लगा दी और बिजनेस करने के अपने मंसूबे में वे धीरे धीरे कामयाब होते गए। The British received special privilege from the Mughal emperor in the form of 2 फरमान्स which allowed them to dominate European trades further. ब्रिटेन के लोगों ने
जो मुग़ल एम्परर थे, सम्राट थे, उनसे फरमान यानी कि लाइसेंस हासिल कर लिए थे बिजनेस करने के लिए, और उसके साथ ही उनका बिजनेस बढ़ता गया और धीरे धीरे बिजनेस के साथ साथ उन्होंने इंडिया पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया. Now let's take another heading, and that is acquisition of territories in India. Along with the business in India, the British along with the business in India, the British were easily felt that Indian rulers of that time were not united. They are divided. Okay, so British people thought that they can easily defeat them, and by dividing them, they can easily control the land and territories of India also. And along with the business, they would like to control the full India, and in this way, they would like to control the resource, natural and artificial resources of India also. So they have decided to conquer India. तब उन्होंने भारत को जीतना शुरू किया, और भारत को जीतने का रास्ता सबसे पहले बंगाल से खुला, जिसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल कहा गया. The first attack of defeating India and conquering India has started from the way of conquest of Bengal. So let's proceed the next heading, and that is conquest of Bengal. So at that time, Bengal, Bihar, and Jharkhand was united. Okay, and combinedly they said Bihar. Especially in Bihar, the British man and the British traders were misusing the rights given by Nawab of Bengal Sirajuddaulah, and they are also misusing the pass given by the Nawab. And they are not also paying custom duties and taxes to Nawab Sirajuddaulah. The Britishers were using false things in trade, and they are not giving money as tax as custom duty to Nawab Sirajuddaulah. In this way, Bengal is losing huge amount of revenue, huge amount of money. So as a result of that, Nawab of Bengal Sirajuddaulah attacked the English factory situated at Kasim Bazar and captured Fort William. Due to this, the British were highly annoyed वे नाराज हो गए, and they have captured कोलकाता under the leadership of रॉबर्ट क्लाइव. और उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में अंग्रेज़ों ने कोलकाता को जीत लिया, तो उन्होंने बंगाल के नवाब पे भयंकर आरोप लगाया कि उन्होंने फ्रेंच वालों की मदद से इंग्लिश वालों को हराना चाहा. In this way, Nawab of Bengal and British army were in front of them, and they have decided to war. And that war is famous in history in the name of Battle of Plassey. So let's start the next heading, Battle of Plassey. तो इस तरीके से अंग्रेज़ ब्रिटिश भारत में बेरोक टोक व्यापार करना चाहते थे, और वे अपनी मनमानी से व्यापार करना चाहते थे. वो यहाँ पे व्यापार करने इसलिए आए थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और वे अपने देश प्रॉफिट को ले जा सकें. लेकिन बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उनकी हरकतों को और उनके इंटेंट को अच्छे तरीके से समझ गया था. इसलिए अब बंगाल के नवाब के पास अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने या वार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था. 1757 में वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज़ों की फ़ौज, सेनाएं, ब्रिटिश आर्मी और बंगाल के नवाब की आर्मी आमने सामने थी. युद्ध में बंगाल का नवाब निश्चित रूप से अंग्रेज़ों से जीत गया होता अगर उसके सुप्रीम कमांडर, आर्मी चीफ कमांडर मीर जाफ़र ने उसके साथ गद्दारी न की होती. मीर जाफ़र लालच में आकर के अंग्रेज़ों से जाकर के, ब्रिटिश से जाकर के मिल गया, और इस तरीके से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से हार गया. इंडिया की हिस्ट्री में वो तारीख ऐसी थी, उसी दिन से ब्रिटेन वालों का यानी अंग्रेज़ों का भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने में उस दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है. उसी दिन से अंग्रेज़ों को हराने वाला और कोई भी नहीं बचा, और अंग्रेज़ भी इस बात को बखूबी समझ गए थे कि भारत के राजा, भारत के लीडर यूनाइटेड नहीं थे, और वे आपस में ही स्ट्रगल किया करते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और एक दूसरे से सुपीरियर साबित करने में हमेशा अपने आप को लगाए रखते थे. अंग्रेज़ों को यह समझने में देर नहीं लगी कि फूट डाल करके, उनको डिवाइड करके
उनको आपस में लड़ा करके हम धीरे धीरे पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान जीत सकते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को करके भी दिखाया। पहले उन्होंने बंगाल जीता, बंगाल जीतने के बाद से पूरा बंगाल जीत लिया, उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा इंडिया जीत लिया। ईस्ट प्लासी के बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब जीत हुई तो उसके भयंकर परिणाम इंडिया में सामने आए। जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने को पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड करने का पावर मिल गया। अब उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला या उससे कोई पूछने वाला कोई नहीं था। ब्रिटेन 24 परगना यानी 24 डिस्ट्रिक्ट की जमींदारी उसे मिल गई और डी फैक्टो रूल भी बंगाल में हो गया। ब्रिटेन वालों को बंगाल की ज़मीन, वहाँ की हवा, वहाँ की रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो सब रिसोर्सेज को यूज़ करने का लाइसेंस उनको मिल गया। आपको मालूम होना चाहिए कि उस टाइम बिहार और बंगाल और झारखंड अलग नहीं थे। बिहार ही था जिसमें झारखंड भी था और आपका बंगाल ही था जिसमें बिहार और झारखंड दोनों थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि झारखंड में कोल के और एल्यूमिनियम के एम्पल अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। तो उस टाइम ये पूरा झारखंड, पूरा बिहार और बंगाल अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ चुका था और इंडिया के उस टाइम के रिसोर्सेज को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था। Now let's proceed towards the next heading, and that is Battle of Buxar. After conquering Bengal, okay, the British were planning to buy and to win Buxar also. After conquering Bengal, they have besieged Mir Jafar as a puppet. Okay, and in reality, the British persons were taking full control of Bihar. They utilizing Bengal and Bihar, and they are just exploiting the lands and the resources of Bengal, and they were doing free trade in Bengal also. Later on, after the death of Mir Jafar, Mir Qasim has become the Bengal of Nawab, but it is only mere puppet in front of British people, in front of British traders, and in front of British company. So Mir Qasim has decided to defeat British because he wants to be the free king and free Nawab of Bengal. So he has met their hands with Sujaud-Dawla, and Sujaud-Dawla at that time was Nawab of Awadh. अवध मीन्स आजकल जो आपका लखनऊ फैज़ाबाद है वो उस ज़माने में अवध प्रोविंस हुआ करता था। ओके, सो मीर कासिम हैज़ ज्वाइन हैंड्स विद सुजाउद्दौला and Mughal Emperor Shah Alam II, and with the combined army he has decided to have a war against the Britishers. But unfortunately he has lost the war in Buxar, and in 1764 the British army killed Shujaudollah and Shah Alam both. And in this way the Britishers has won the Battle of Buxar. And what was the consequences of Battle of Buxar? बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई के क्या रिजल्ट हुए? रिजल्ट क्या हुए? रिजल्ट नंबर 1, मुग़ल एम्परर बिकेम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश। जो मुग़ल एम्परर था उसको ब्रिटिश वालों ने पेंशन दे करके उसको जीने के लिए छोड़ दिया। सेकेंड, इन द सेटलमेंट विथ नवाब ऑफ बंगाल द इंग्लिश गॉट द राइट ऑफ दीवानी एंड राइट ऑफ कलेक्ट रेवेन्यू इन प्रोविंस ऑफ बंगाल। और उस लड़ाई के बाद ब्रिटिश वालों को बंगाल और बिहार में रेवेन्यू यानी कि पैसे वसूलने के और पैसे कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों स्टेट्स के उसको लाइसेंस मिल गए कि वहाँ से जितने चाहे उतने पैसे वसूल सकता है। और बंगाल का नवाब और मुग़ल एम्पर दोनों अंग्रेज़ों के सामने झुक कर नतमस्तक हो गए और उन्होंने वादा किया कि वे किसी पॉइंट पे ब्रिटिश का विरोध नहीं करेंगे। Now let's move to the next heading, and that is dual governance in Bengal. The Battle of Buxar established the system of dual governance in Bengal, which gave the British the right to collect revenue, the right of Nizamat including maintenance of law and order, dispersions of criminal justice, and that of defending the frontiers remained with Nawab, who was paid an annual amount by British to meet the expenses.
उसके बाद से बंगाल में डुअल गवर्नेंस हो गया। बंगाल का नवाब तो वहाँ पे रूल कर ही रहा था, लेकिन रेवेन्यू यानी कि टैक्स टैक्स के जो पैसे कलेक्ट करने का जो पावर था वो अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। तो जनता को दोहरे मापदंडों का सामना करना पड़ रहा था और दोनों मिल करके जनता को लूट रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स हैज़ एंडेड द डुअल सिस्टम इन 1772। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में डुअल गवर्नेंस को एंड कर दिया। एंड एट दैट टाइम कोलकाता was made the capital of the power of British, and later on in 1911 Delhi was made the capital of India. कोलकाता को ब्रिटिश पावर का कैपिटल बना दिया गया, लेकिन 1911 में कोलकाता को हटा करके दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया। Let's move towards the next heading, that is Anglo-Mysore War 1766 to 1799. After conquering Bengal, the Britishers were planning to win Mysore also. The state of Karnataka was known as Mysore at that time, and at that time in 18th century, Hyder Ali was the ruler of Mysore along with his son Tipu Sultan. Okay, so the Britishers were planning to conquer Mysore also. They have sent a message to Hyder Ali that they would like to have friendship with him, but Hyder Ali has totally refused to have a friendship with the Britishers, and Hyder Ali were planning to help the French country. His son Tipu Sultan also did not allow trade with the British. He has not permitted the British man to trade in Mysore, to business in Mysore. This enmity caused the Four Anglo-Mysore War between Mysore and British between the years 1766 to 1799. In 1799, the British captured Srirangapatnam, the capital of Tipu Sultan Hyder Ali. Tipu Sultan was martyred in the war. The defeat of Mysore made the way for the British to establish their complete supremacy most over of the India. जब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को मैसूर में बिजनेस करने से मना कर दिया तो अंग्रेज़ नाराज़ हो गए और हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच मैसूर में 4 वॉर हुआ। 1766 से लेकर के 1719 तक 4 ग्रेट वॉर लड़ी गई और अंत में ब्रिटिश ने श्रीरंगपट्टनम जो कि कैपिटल था मैसूर का उसको जीत लिया, हथिया लिया। टीपू सुल्तान आखिरकार मारा गया और मैसूर के जीत के बाद अंग्रेज़ों को हराने वाला उस टाइम इंडिया में कोई नहीं बचा था और धीरे धीरे उन्होंने पूरा इंडिया जीतने का सपना बना लिया। इसके बाद उनकी लड़ाई हुई मराठों से। Now let's proceed towards the next heading, and that is War against Maratha. Now British wants to set a whole empire in India, and in the way Marathas were the biggest threat. Marathas doesn't allow the Englishmen, the Britishers, to do business in their sector, and Britishers were very much honored with the unlawful things has been done from the side of Marathas. So they would like to defeat Marathas and they have planned to conquer Maratha also. After the death of Peshwa Madhavrao in 1772, the Marathas has got little bit weaker and British men found a plan to defeat Marathas. The Anglo-Maratha wars before the British gained control over the kingdom. The British supported the claims of Raghunath Rao against Peshwa Madhavrao II, an infant son of descendant Peshwa. This led to the first Anglo-Maratha War, where the British were forced to recognize Madhavrao as the Peshwa. However, the British and Marathas have fought total of 3 wars under the leadership of Nana Fadnavis, and finally in the third war, Britishers were able to defeat Marathas, and along with Bengal, Bihar, Odisha, Mysore, the Marathas, the territory of Maratha, it means by Maharashtra. And after the Bengal, Bihar, Odisha and Mysore and Maharashtra also was won by the Britishers.
उसके बाद अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने पंजाब और सिंध पे भी अटैक किया, और अटैक करने के बाद जो हार जाता वो अपने आप ब्रिटिश को अपना राजा या अपना किंग मान लेता। इसके साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने इंडिया को हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स भी बनाया। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ठीक है, वो गवर्नर जनरल था। 1848 में उसने एक पॉलिसी बनाई जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स दिया गया। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स में ये कहा गया कि जिन इंडियन स्टेट्स में अगर रूलर हैं, किंग हैं, क्वीन हैं, सम्राट हैं, एम्परर हैं, जो भी हैं, उनको अगर कोई लड़का ना हुआ या उनका सक्सेसर कोई ना हुआ, उनके बाद शासन करने के लिए, रूल करने के लिए अगर कोई राजगद्दी का वारिस नहीं पैदा हुआ, तो वो स्टेट अपने आप ब्रिटेन में मिल जाएंगे, ब्रिटिश में मिल जाएंगे, यानी उन पे ब्रिटिश वालों का यानी कि अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। तो इस डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत उसने जैतपुर, अंग्रेज़ों ने जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और तमाम अन्य स्टेट्स को अपने अंडर में मिला लिया। यानी सीधे सीधे कहें तो इन बिना लड़ाई किए, बिना तलवार उठाए, बिना बंदूक चलाए अंग्रेज़ों ने ये सभी स्टेट भी अपने अंडर कर लिए। यानी अब धीरे धीरे पूरे इंडिया पे उनका कंट्रोल होता जा रहा था। इसमें एक स्टेट झांसी था। झांसी ने अपने आप को वैसे ही हवाले नहीं किया जैसे सतारा, उदयपुर, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर ने अपने आप को बिना लड़ाई किए अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, लेकिन झांसी ने ऐसा नहीं किया। झांसी की बागडोर, झांसी का रूलर उस टाइम रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से युद्ध किया और भयंकर युद्ध किया, लेकिन आखिरकार गद्दारी के कारण वो भी मारी गईं। और उसके बाद झांसी भी 1853 में अंग्रेज़ों ने अपने स्टेट में मिला लिया। उसके बाद से 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एक अनेक्शन भेजा स्टेट ऑफ अवध को, और वहाँ के जो वाजिद अली शाह जो वहाँ के रूलर थे उनको भी उसने अपने साथ मिला लिया, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल अपना बढ़ाते चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश। आइए अब इसको देखते हैं। In order to control the growing number of regions that Britain was assimilated within its folds, the British set up a new system of administration. Their main purpose was to benefit from trade and increase their profits through trade. Improving the welfare of the people was never in their intention. उसके बाद से अंग्रेज़ों ने एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन व्यवस्था, रूल करने की व्यवस्था लागू की, जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए बनी थी। अब वे इंडिया के रिसोर्सेज को दिन रात लूटने लगे, और यहाँ के रिसोर्सेज को लूट करके, कब्ज़ा कर करके और अपने देश को धनी बनाने में लग गए। अंग्रेज़ों का इंटेंशन कभी भी भारत के लोगों का भला करना नहीं था, वे बस अपना भला करना चाहते थे, और लोगों की वेलफेयर यानी लोगों का कल्याण करना उनका कभी भी इंटेंशन नहीं रहा। यहाँ के लोगों पे अत्याचार करना और तरह तरह के टैक्स लगाना, जितना वो लूट करके ले जा सकते थे उतना उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, और हमारा देश धीरे धीरे उनके मंसूबों में कामयाब होता गया। वे अपने मंसूबे में कामयाब होते गए। मिलते हैं आपसे, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, और कोरोना से जितना हो सके अपने आप को बचाएं। और आपके माँ बाप जो कहते हैं उसको फॉलो करें। वे जब भी कुछ कहेंगे आपके भले के लिए ही कहेंगे, आपके भलाई के अलावा उनका और कोई इंटेंशन हो ही नहीं सकता।